So good morning friends, we shall start the session. The session is all about the what we say the importance of taking big sum insured mediclaim in current days, in current scenario, जहाँ पे जो हिसाब से मेडिक्लेम के मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल्स आर शूटिंग अप, जहाँ पे every day where we can see that there are huge number of people who are getting detected with some or the other thing in this covid days. तो 50,000 plus रोज के covid होते, तो it is not necessary that 50,000 are only covid. I repeat, 50,000 जो आते हैं तो रोज के रोज सिर्फ कोविड वाले केस नहीं आते. It is not so. There are other many people also who are other than covid also, यानी उनको जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है उसके साथ दे हैव बीन कैच्ड अप विद कोविड. जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग की जो बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग के अंदर माइट बी अ डायबिटिक, might be heart related, might be anything in relating to kidney or something. तो वो सिनेरियो में रोज के रोज more than 50,000 cases are being catch up. अभी जो करंट सिनेरियो है, अभी जो करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand that why we should require a big sum insured mediclaim. See, currently industry का एक average है कि people are not having even a double digit mediclaim, यानी 5 to 7 lakh is the standard mediclaim which is the industry average. जो public के पास इतने का ही mediclaim है, but आइडियली स्पीकिंग ये जो 5 to 7 lakhs का मेडिक्लेम है, ये आपका पॉकेट खा जाएगा. यू विल नेवर रियलाइज ये आपका पॉकेट को खा जाएगा, ये आपका हार्ड अर्न सेविंग को खा जाएगा. दैट वी विल नेवर अंडरस्टैंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड हैव अ रीजनेबल very big amount of a sum insured, very big amount of a mediclaim policy. But प्रॉब्लम इधर ही है कि पीपल आर नॉट अवेयर के बिग सम इंश्योर्ड मेडिक्लेम आर वेरी चीप. प्रॉब्लम यही है कि दे फील के भाई अपने को क्या होने वाला है. आज के तारीख में एवरी डे वी आर गेटिंग सम नेगेटिव न्यूज, एवरी डे वी आर गेटिंग सम नेगेटिव न्यूज. अभी एक एवरी डे जैसे कि कोरोना रिलेटेड, एवरी डे करेंगे तो बारिश के रिलेटेड, बारिश की वजह से फिर कुछ इलनेस आ जाती है, बारिश के रिलेटेड कभी कोई स्किट हो गया. तो एवरी डे वी आर गेटिंग सम न्यूज, एवरी डे वी आर फीलिंग कि भाई लाइफ हैज बिकम वेरी हार्ड. दिस पोस्ट कोविड, जो ये कोविड हुआ इसके बाद की life of every person, life of every individual, life of every person has felt, they felt कि भाई ये जो हम हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. but it is not so कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये ओवरऑल ग्लोब में हो रहा है. so we have to accept the way it is, we can't change it, we can't say कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है. so this is the thing which is happening all over. और इसके लिए जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट पेंडेमिक में लोग जूझ रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल, व्हाट इज द थिंग अवेलेबल wherein we can give, wherein we can help together, wherein we have to stand hand in hand with everyone, wherein we have to stay together everyone, wherein we have to grow together. what is the thing what is the thing एक छोटा सा झलक, स्क्रीन सबको दिख रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल? कैन यू पुट ऑन द चैट बॉक्स, इज द स्क्रीन विजिबल? गुड मॉर्निंग. इज द स्क्रीन विजिबल? कैन यू पुट ऑन द चैट बॉक्स? एक छोटा सा व्हाट वी से लाइक अ क्लिप टाइप.
So coming to our PPT part, coming to our presentation part. So this is the real life. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. This is the real fact. We have to accept that कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. But yes, we all will win together. Only thing required is the positivity. Only thing required is the spirit. Only thing required is the intention. Only thing required is the protection. It is the duty of our to protect ourselves, our family, our what we say like our all the neighborhoods, our all the family, friends, and everything. So starting with the session. So सिर्फ एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, whoever are the participants, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, whatever sessions हम लोग हर संडे को ये जो सेशंस करते हैं, and we will be doing this similar session, educational sessions every Sunday. एक ही सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो भी सेशंस होंगे इसके अंदर आप आपके सभी के सभी पेरेंट्स, आपके सभी बच्चे लोग, आपके कोई फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, सबको शेयर कर सकते हैं, सबको बिठा सकते हैं. बिकॉज वॉट एवर सेशन वी डू, वी विल डू एनर्जेटिक सेशन, वी विल डू अ सुपर डुपर सेशन wherein your family, your parents, your children will also learn a lot of things, and they will understand the importance of doing the things which are taught. They will try to learn, they will try to grasp the thing which are most important and what is to be done. So you can invite your parents, you can invite your children and everyone, and let everyone also join this session, and let they also learn, because learning starts with the small. एक second, 1 second. So we shall not take much time. We shall start the session. Though what it is all about. First reason why not in this concrete jungles, even life threatenings are growing in India. What this means, यानी जो हम लोग रहते हैं, जो हम लोग हमारे लाइफ में रहते हैं, वो लाइफ में ऑलरेडी देयर आर कॉन्क्रीट जंगल्स. यानी कॉन्क्रीट जंगल का मतलब होता है कि वेयर वी आर लिविंग एट दैट प्लेस ऑलरेडी वी आर हैविंग इनटू कॉन्क्रीट, यानी वेयर वी आर स्टेइंग, जिधर हम रहते हैं वहां पे ऑलरेडी कॉन्क्रीट जंगल्स, इन द सेंस व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट जंगल्स. तो कॉन्क्रीट जंगल्स आर द one second. कॉन्क्रीट जंगल्स यानी जो हम लोग रहते हैं घर पे, जो हमारा घर है वो 4 वॉल्स से है. 4 वॉल्स इज अ कॉन्क्रीट जंगल. डे बाय डे स्काई स्क्रैपर्स बढ़ रहे हैं, डे बाय डे जो हिसाब से लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही है, जो हिसाब से लंबी लंबी व्हाट वी से लाइक जो हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है. So we are living into that concrete jungle. Actually our life has become a concrete jungle, क्योंकि हम लोग what we are doing, we are destroying the natural forest, we are destroying the natural what we say the atmosphere, and because of that we are staying into that concrete jungle. और वो होने के वजह से what has become, वो होने के वजह से लास्ट 10 साल में इतनी नई बीमारियां आ गई है. जैसे अपन एक ये जो है ना, दिस इज अ सैंपल लिस्ट. 2019 में कोरोना कोविड-19 आया, 2015 में जीका करके आया था, 2014 में एबोला करके आया था, H7N9, यानी जो 13, 12, 13, 14, 15 ये जो 4-5 साल थे ना, ये तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ आते गया था. सार्स करके जो आया था, यानी these are the continuous virus. See now what it has become. जितना पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, जितना जो हिसाब से डैमेज क्रिएट हुआ है, जो हिसाब से डिस्क्रिप्शन हुआ है इन द फॉरेस्ट,
वो उसका रिजल्ट एटमॉस्फेयर पे आया है, ओजोन पे उसका व्हाट वी से लाइक द डिस्ट्रक्शन हैज बिकेम ऑन द ओजोन। ये जो लास्ट 3-4 महीने का जो लॉकडाउन था, so what it has happened actually speaking, if we take it on a positive sense, तो ये जो लॉकडाउन था, तो atmosphere has recovered itself, atmosphere has recovered itself, it has changed itself। ये जो इतना पोल्यूशन होने के वजह से ओजोन खराब हो रहा था, ये जो इतना पोल्यूशन के हिसाब से हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग का ब्रीथिंग, हम लोग को जो इतने आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, वो चीज को टेकन केयर ऑफ लिया गया है कि wherein the atmosphere, the ozone was getting cleared, ओजोन बहुत हद तक क्लियर हुआ है। इफ यू से द स्टडी आल्सो, जो स्टडी एटमॉस्फेयर रिसर्च जो उन लोग की टीम से आता है, इट हैज टोल्ड दैट 50 years of living has been improved, यानी हम लोग का जो जीने का है वो 50 years से ज्यादा इंप्रूव हो गया। एटमॉस्फेयर हैज क्लियर्ड इन दैट वे। ओजोन के अंदर कितनी क्लियरिटी हो गई है, ओजोन के अंदर कितना जो पोल्यूशन था, वो पोल्यूशन 4 महीना नहीं होने के वजह से it has improved। So take it in a positive sense rather than crying for the situation। Yes, no doubt financial damage हुआ है, and we have to accept that, and that is the real fact कि जो ये लॉकडाउन हुआ था, इसमें जो financial damage हुआ है, it has created a big damage to everyone। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डैमेज हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बट थिंग इज दैट वी आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ atmosphere, we are helpless in front of God। We have to accept, because God has given the liberality, but we had made the misuse of that। We have created a Tarzan buildings, Tarzan towers, everyday development। No doubt in that development we all have forgot our responsibility towards the atmosphere, we all have forgot the responsibility towards our mother nature and helping them to save them। Now as the topic says, importance of taking high sum insured mediclaim, you will be shocked to know that there are two sectors in which there is a very huge amount of what we say like a very big amount of inflation। First is the medical, second is the education। These are the two alarming sectors, these are the two sectors wherein there is a very huge amount of what we say like inflation, double digit inflation। Normal inflation is rising say like at the rate of 6 to 7%, 8%। the inflation for medical sciences, inflation for what we say like educational and these all things are increasing at the rate of more than 15-16% also। This is the minimum rate, what is the average industry as per medical research and what is as per the WHO reports and this all says। So this is the minimum। So think that if you are having that saving, then is that saving growing at that same rate? आपका सेविंग जो आपने बनाया है, वो सेविंग क्या 14% पे ग्रो हो रहा है कि आपके आगे के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं? तो पॉसिबल ये है कि नहीं होएगा। वी आर नॉट हैविंग दैट बिग सेविंग्स के वी कैन पुल अप दैट। समझो आज के तारीख में व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज, एक हम लोगों ने एक व्हाट वी से लाइक कैलकुलेशन निकाला था, एक वी हैड टेकन अ जनरल पोल एंड उसमें वी हैड टेकन द पोल फॉर अप्रोक्सीमेटली 1000 पीपल, और उसमें एक हम लोगों ने पोल ऐसा रन किया था वेरिन आई वाज टू अंडरस्टैंड कि समझो कि इफ मेडिकल एक्सपेंसेस कम फॉर 5 लाख रुपीस, 5 लाख का एक मेडिकल बिल आ जाता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड? और to your shock, it is the real answer is 85% of the people told ke boss they can't manage। This is the real fact। 85% of people told ke boss we can't manage, we can't remove 5 lakh at a spot if some medical emergency came। 14% people told 14% ke bhai they can manage but it will damage their financial wealth। जो 5 लाख का मेडिकल बिल आ गया और आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, देयर इज एक स्टडी ये भी है कि इंडिया में 10% से ज्यादा मेडिक्लेम पब्लिक के पास नहीं है। दिस इज द रियल फैक्ट। द मेडिक्लेम होल्डर्स आर नॉट मोर देन 10%, यानी 10% से ज्यादा लोगों के पास मेडिक्लेम नहीं है, और जो 90% है वो तो अनटैप्ड मार्केट है, यानी मार्केट इतना बड़ा है दैट वी कांट अज्यूम आल्सो। Only we have to do is the right education, only we have to do is the right knowledge sharing।
right knowledge sharing से भी we can have a very good market, we can have a very good clientele, we can tap them and protect their financial wealth. See, most importantly, rather than having a business, it is for the protecting their financial wealth. And yes, we can do that by protecting their financial wealth, by educating them importance of taking mediclaim, educating them what is the drawbacks of not taking mediclaim. तो ये एक स्टडी में आया था कि 85% people told that they can't manage, 14% people told that boss they will manage it but it will destroy their financial wealth, and only 1% is the people who can afford it. Now आप समझो जहां पे सिर्फ 1% है, तो whether we all are under that category, whether we ever fall on that category कि भाई हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो it is never possible, never possible. It is so told that right time to take, right time to think, right time to port your existing mediclaim. See, there are people who are having existing mediclaim, but again thing is what, that their existing mediclaim is 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. Trust me, next slide I will show, it will open up your eyes. It will, trust me, it will open up your eyes. You have never thought of कि भाई what are the bills that can go, what is the amount of the cost of medical treatment that it can ruin your pockets. आपका pocket को कितना damage कर सकता है, that you can't assume also. ये एक slide है, इसमें ये एक हम लोगों ने ये standard slide निकाला है, standard cost निकाला है, and that is the cost of standard hospital. एक कोई तो भी normal standard hospital है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल यानी एवरेज ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हम लोग ने ये कॉस्ट निकाला है. करंटली तो हॉस्पिटल्स में भी रेट कार्ड आ गया सिमिलर टू योर मेन्यू कार्ड ऑफ योर होटल. जैसा आप होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल में एक मेन्यू कार्ड रहता है, और मेन्यू कार्ड में जैसा आपके पास अलग अलग वेराइटीज के कॉस्ट रहते हैं कि एसी में अंदर बैठेंगे तो ये कॉस्ट है, नॉन एसी में बैठेंगे तो ये कॉस्ट है, डिलक्स में बैठेंगे तो ये कॉस्ट है. सो सिमिलर इन हॉस्पिटल्स आल्सो दे हैव केम अप विद वेरियस ऑफ दिस थिंग्स के वेरिएंट, सूट का इतना है, डिलक्स का इतना है, सी फेस का इतना है, वो फेस का इतना है, और दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज रनिंग. एंड एट दैट टाइम वी कांट अज्यूम द कॉस्ट ऑफ दैट हॉस्पिटल्स आल्सो. एक सिंपल हम लोग ने जो बनाया हिप रिप्लेसमेंट, एक हिप रिप्लेसमेंट का करंट कॉस्ट इज 3 लाख, यानी एक हिप रिप्लेसमेंट करना है तो करंट कॉस्ट उसका 3 लाख है. अज्यूमिंग द इन्फ्लेशन एज ग्रोइंग एज 14.5%, तो यही 5 साल के बाद इट विल बी 5.5 लाख और 6 लाख, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख. तो आप समझ के चलो द कॉस्ट जो ग्रो हो रहा है, व्हाट इट इज ग्रोइंग एंड वेयर इट इज रीचिंग. 10 साल के बाद सेम कॉस्ट जो आज 3 लाख रुपए है वो 11-12 लाख रुपया हो जाएगा. सेम आफ्टर 20 इयर्स इट विल बी अराउंड 40 लाख रुपीस एक हिप रिप्लेसमेंट. आज ये चीज किसी को अब्सॉर्ब नहीं होएगा. आज ये चीज किसी को ये व्हाट वी से लाइक इट इज नॉट कि भाई अब्सॉर्ब हो गया, इट इज नॉट दैट दे कैन अंडरस्टैंड. यस, बट दिस इज द रियल फैक्ट दैट दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन. करंट सिनेरियो में जो हिसाब से मेडिकल साइंस इंप्रूव हो रहे, जो हिसाब से आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रस्ट मी दैट even a person in the stage of dying can be stayed alive because of the technology. The technology advancement is going on that speed, day and night the advancement is going. जो टेक्नोलॉजी आज आ गया शायद वो 2 महीने के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, उसके जगह पे नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा. So if that technology is growing, एक चीज. दूसरा चीज, there is not lots and lots of doctors, यानी अपने पास उतना मैन पावर नहीं है जो डॉक्टर्स का मैन पावर चाहिए, स्पेशलाइज्ड का मैन पावर चाहिए, that we are not having. हॉस्पिटल्स बन रहे बट डॉक्टर्स के इतना मैन पावर नहीं है, एंड बिकॉज दैट इज द स्केर्सिटी, वो रीजंस के हिसाब से ये कॉस्ट इज गोइंग अप. ट्रस्ट मी, मेरे सिर्फ एक ही सभी से जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी व्यूअर्स है जो फेसबुक पे भी सुन रहे, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा सिर्फ एक ही आपसे कंसर्न है. ये जो कॉस्ट है दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट आई हैव टेकन. इफ यू वांट टू डू, पेपर पेन पे नोट कर लो, ये जितनी भी बीमारी है, ये बीमारी के नाम आप पेपर पेन पे नोट करो, और आप जो एरिया में रहते हो
आप जिधर रहते हो वो एरिया के लोकल डॉक्टर से, यानी वो एरिया के लोकल हॉस्पिटल में आप सिर्फ फोन कर लो कि सर देयर इज अ हिप रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट। सिर्फ एक बार ये ट्राई कर लो, this will open up your eyes. Trust me, this is the right time that you have to open up your eyes. This is the right time that you have to think very much positively. This is the right time, this is the current time wherein you can't deny okay boss I will not do, I don't think so. This is not that time. The time has changed, the scenario has changed 100%. Completely the scenario has changed. We can't deny because we never know what can happen up. किस दिन क्या चीज हो जाएगा, वी कांट डिनाई, वी कांट एक्सेप्ट। आज के तारीख में एक्सटेंड एंजियोप्लास्टी का 3.5 लाख रुपए का, बाईपास 4.5-5 लाख का कॉस्ट है, रीनल यानी रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी 6 लाख, डबल रिप्लेसमेंट हार्ट वॉल का 4.5 लाख। ये जो आप देख रहे हो दिस इज द अलार्मिंग कॉस्ट, दिस इज द अलार्मिंग कॉस्ट। यानी ये आपके पॉकेट्स को कितना डैमेज कर सकता है, यू कांट थिंक ऑल्सो, यू कांट थिंक ऑल्सो। रेगुलर बीमारी जो आएगी वो छोड़ दो, एक क्रिटिकल इलनेस भी जो लाइफ में आ गया तो इट कैन फिनिश ऑफ योर कंप्लीट लाइफ सेविंग, जो पूरे जिंदगी में आपने मेहनत करके सेविंग्स किया है फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, फॉर योर चाइल्ड्स मैरिज, फॉर योर सेल्फ रिटायरमेंट। सेल्फ रिटायरमेंट कहाँ पे होएगा, सेल्फ रिटायरमेंट कहाँ पे होएगा? जो आपने अभी से वो सब प्लानिंग नहीं किया रहेगा, then how that thing is possible, how that thing is practically done? So it is my sincere request, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि it is the alarming time, please take this thing seriously, please increase your sum insured। आपके पास जो already मेडिक्लेम है तो please increase that sum insured। आपके पास जो मेडिक्लेम नहीं है please make a point, make a task के मेरे को ये महीने में ही लेना है। ये जो महीना है ना अगस्त महीना, फाइनेंशियल आजादी, आजादी का महीना है। मेक योर फैमिली फाइनेंशियल आजाद, मेक योर गिव योर फैमिली अ फाइनेंशियल आजादी। बोल दो उनको कि बॉस तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन किया है एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल गिव यू द राइट प्रोडक्ट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टू मेक योर फैमिली फाइनेंशियल फ्री। बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, you are on that different trauma but your family is on different trauma, understand that। एक critical illness कभी भी किसी के life में आती है, we don't want but if anything comes off and it eats away your complete saving, on the contrary it will push you in debts because we कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि भाई नहीं अभी तो पैसा नहीं है तो एक काम करो आप इसको रख दो। It is not practically possible। So it will eat up your complete, it will eat up your what we say like entire saving। This is the session, this is the thing that we are doing for all। ये educational thing हम लोग इसके लिए task लेके कर रहे। आप बोलना आपकी सोसाइटी में करना है, we will do। आप बोलना आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स में करना है, आप सिर्फ उन लोग को बुलाना, we will arrange a session। We are taking that responsibility to educate your family, we are taking that responsibility to educate because we want that everyone should be protected, everyone should be secured। ये जो अगस्त महीना है ना इसमें कसम खा लेना कि भाई फाइनेंशियली आजादी तो मैं दे के ही रहूंगा, मेरी फैमिली को फाइनेंशियल आजादी दूंगा ही। मैं आज से ही मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग भी करूंगा, मैं आज से ही मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी करूंगा, मैं आज से ही मेरा टर्म प्लान लूंगा। बट दिस इज द मस्ट, this is to be done। Now considering this all cost, if we see this all cost, तो ये सब cost है alarming situation में what we see कि भाई what we understand is the what is the solution, कि भाई इसका solution क्या है, what is the thing that you how we can overcome। तो इसका overcome करने का एक ही इलाज है by having a very good amount of Mediclaim policy, and the Mediclaim policy is of Religare। Care Advantage is the name, Care Advantage करके is a policy of a Religare General Insurance, which is a standalone insurance company for health insurance। और उसके key benefits, today's का जो आज का जो सेशन है, ये सेशन हम लोग ने वैसे ही रखा है considering कि भाई what are the cost of medical expenses, for understanding
and what are the features of. ये आज का जो सेशन है वो स्पेशली we will try to take every Sunday similar sessions every Sunday, जिसमें आप आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स सबको इनवाइट करना. अच्छे से अच्छा एजुकेशन. पूरा वीक हम लोग दबा के मेहनत करके उसके ऊपर पीपीटी बनाते हैं, पूरा मेहनत करके उसके ऊपर एजुकेशनल नोट्स जमा करते हैं, ताकि वी कैन गिव यू द करेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ताकि वी कैन गिव यू द करेक्ट नॉलेज. Going with the features of care advantage. ये रेलीगेयर का जो एक ही प्रोडक्ट है which is giving you which is am I audible ना? मेरा वॉइस क्लियर है ना? I think something went wrong. Am I audible? मेरा आवाज क्लियर है ना? Can you put on the chat box? Am I audible? मेरा वॉइस क्लियर है? Okay, sorry. So this is the only product wherein high sum insured, affordable premium with increasing benefits and optional benefits, no room rent capping, automatic recharge, no claim bonus, and last but not the least, deduction under 80D. एक एक चीज को क्लियर लेते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आज के तारीख में एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है, which is offering stand alone 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड. Yes, you heard the right thing. सिंगल कंपनी एक ही सम इंश्योर्ड, 1 करोड़. 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड का मेडिक्लेम पॉलिसी कोई कंपनी के पास नहीं है. जितनी स्टैंड अलोन कंपनी है, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है, किसी के पास नहीं है. Only Religare is having a single product wherein 1 करोड़ का what we say like मेडिक्लेम कवरेज. So what is the things and what are the, ये जो जितने चीजें इसके ऊपर एक एक डिटेल में बात करेंगे. पहले तो जाते हैं पॉलिसी कंडीशंस पे. Who can be maximum, minimum entry age, everything. थोड़ा इसके ऊपर, because मैंने जैसा बताया ये जो आज का सेशन है we have completely done only on the one product of Religare. कि ये Religare के प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम पूरी नॉलेज आपको शेयर करेंगे. उसके ऊपर आते हैं एंट्री एज 5 years and up to नो एज, यानी रिन्यूअल अप टू मैक्सिमम कोई भी एज तक आप कर सकते हैं. बाद में फ्लोटर के अंदर कोई रहेगा तो आप जो एंट्री एज बच्चे लोग रहेंगे तो बच्चे लोग को 91 डेज से 18 साल तक का यस यू कैन मैक्सिमम एंट्री एज जो है उसमें बाद में आपका जो मैक्सिमम आप जो रिन्यूअल कर सकते हैं तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है. पॉलिसी टर्म 1, 2, 3 साल, तो आप एक साथ में 2 साल 3 साल का प्रीमियम पे करके यू कैन सेव, यू कैन गेट डिस्काउंट्स ऑन योर प्रीमियम. So that is also the option available. Co-payment. Co-payment क्या है? If a person is taking Religare policy for the first time and his age of entry is more than 60, यानी 61 years का कोई आदमी है और वो first time Religare का ये what we say like policy ले रहा है, तो in that case 20% co-payment है and it will be there for lifelong. So there is a co-payment for what we say like जो 60 के ऊपर है. Next Sunday we are coming up with the session on senior citizen mediclaim. Yes, senior citizen, जितने भी senior citizen है उनके लिए we are coming up. That is not the product of Religare. Stay tuned for next Sunday, same time 11:30. Next Sunday को we are having a super duper session for all our parents. For me, all my senior citizens are my parents. उनके लिए what we can give, उनके लिए क्या प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते, उनके लिए क्या चीज दे सकते कि wherein at that age they don't feel कि भाई I have become a burden on my child. उनको ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए, because आज हम जो भी है that is because of our parents. But क्योंकि पहले फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, पहले मेरे निर्मल दंड जैसा आदमी नहीं था कि जो ऐसा बकबक करता था, बोलता था कि बॉस लो पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम लो, खुद के लिए मेडिक्लेम लो. कोई ऐसा आदमी नहीं था निर्मल जैसा जो बोलता था कि बॉस 1 करोड़ का मेडिक्लेम लो. आज के तारीख में भी जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स है ना उनकी फटती है 1 करोड़ का मेडिक्लेम बोलने के लिए. आई डोंट नो व्हाई आर यू नॉट एजुकेटिंग पीपल, व्हाई आर यू नॉट फोर्सिंग पीपल के बॉस 1 करोड़ का मेडिक्लेम लेना चाहिए. क्यों 50 लाख और 50 लाख का टॉप अप नहीं बोलते? सी आई डोंट नो, देयर आर पीपल जो इसकी बोलने को ही फटती है कि 5 लाख की बात करते हैं, उन लोग को 10 लाख के भी बात करने को नहीं आता. सी इंडिया इज द कंट्री wherein if you do education, if you do training, if you educate them, if you force them, they will take. This is my experience.
दिस इज माई एक्सपीरियंस। मेरे ऑफिस में भी मेरी टीम बोलती है कि सर 1 करोड़ की डायरेक्ट, अपन उसको 5 लाख की देते हैं, और मैं एम्फोसाइज करता है नहीं बॉस, अपने को 1 करोड़ की बात करना है, मैं 1 करोड़ के नीचे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं देना है? पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको उनको कंपेयर करो। सी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इंडिया इज द कंट्री जो बनिया की कंट्री बोलते हैं, अपन बनिया बोलते हैं। इंडियंस के अंदर है ना दिमाग थोड़ा सबसे ज्यादा है। आके ग्लोब में जो भी सीनियर पोजीशन है ना उधर इंडियंस बैठते। तो जब इंडियंस को कोई वो पोजीशन पे बिठाते तो कुछ रीजन रहेगा। there is a very good mind that people are having. Only thing is that they are not being getting right education. Only thing is that they are not being given right training. ये रीजन की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट के एजुकेशन के ऊपर जितना टाइम देना है दे दो, जितना हो सके उतना डिवोशन दे दो एजुकेशन के ऊपर और सिखाओ। सो आई टेल कि भाई 1 करोड़ का मेडिक्लेम लो, 60 के ऊपर के लिए इधर को पेमेंट है। Next week we are having a session wherein we will cover them also, and trust me, without co-payment we will cover them. I will give them a policy. There are companies which are there to give the policies, but again the thing comes public को knowledge नहीं है। We are having a session on next Sunday on senior citizens कि कौन सी कंपनी का पॉलिसी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरीथिंग। वेटिंग पीरियड 30 days वेटिंग पीरियड इनिशियल। आज किसी ने पॉलिसी लिया, नया पॉलिसी आज किसी ने लिया तो 30 डेज के बाद उनको इलनेस के लिए चालू होएगा। बट पॉलिसी इश्यू होने के बाद इफ देयर इज बिकॉज केस इन रिगार्ड्स टू व्हाट वी से लाइक एक्सीडेंट और समथिंग, देन दैट विल बी कवर्ड ऑन द डे इमीडिएटली बेसिस। इमीडिएटली नेम एलिमेंट डिसीजेस, नेम एलिमेंट डिसीजेस इज द स्टैंडर्ड जिसके ऊपर वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स। दिस इज द स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। और जो नेम एलिमेंट डिसीजेस भी होते वो नेम एलिमेंट डिसीजेस आर स्टैंडर्ड अक्रॉस एवरी कंपनी, अक्रॉस एवरी कंपनी। किसी में 2-4 नाम प्लस माइनस है बट दिस इज द स्टैंडर्ड, वो सब जगह पे सेम ही है। प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड यानी प्री एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी आपके पास कोई तो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे कि आपको बीपी है, आप बीपी की दवाई खाते हो, जैसे कि आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज की दवाई खाते हो, जैसे कि आपको व्हाट वी से लाइक हार्ट रिलेटेड है, आप हार्ट रिलेटेड ब्लड रिलेटेड कोई तो गोली खाते हो, तो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड खाते हो, व्हाट वी से लाइक थायराइड है, थायराइड रिलेटेड खाते हो, तो दिस आर ऑल प्री एग्जिस्टिंग। तो प्री एग्जिस्टिंग के अंदर इट इज द कंपलसरी कि आपको डिस्क्लोज करना ही है। देयर आर पीपल, इट इज माय एक्सपीरियंस, दे ऑलवेज टेल कि इंश्योरेंस कंपनी चोर है जिसने मेरा पैसा नहीं दिया। दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन कि इंश्योरेंस कंपनी चोर है। सी आई ऑलवेज टेल आई एम नॉट in favor of any company. I am not in favor of any company because for me my client is the real person, because I earn because my client pays the premium. जो client premium नहीं भरेगा तो मैं earn नहीं करूंगा। But there are people who blame insurance company. Actually you should not blame insurance company, you should blame your financial advisor. I repeat, आपको इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड ब्लेम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इट वाज योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्रॉब्लम कि उसने आपको ये सब चीजें नहीं पूछा, उसने आपको ये सब चीजें पूछना चाहिए था, उसने आपको ये सब चीजें को एजुकेट करना चाहिए था, बट ही हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटी। इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, बट इट इज टेकन इन दैट वे कि इंश्योरेंस कंपनी मेरा पैसा खा गया। एक चीज हमेशा याद रखना, एक इंश्योरेंस कंपनी 100 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट आईआरडीए को देता है, तब जाके एक लाइसेंस प्रोक्योर होता है फॉर इश्यूइंग द पॉलिसी। तो आपको क्या लगता है कि आपका 10-20 लाख का क्लेम खा के वो 100 करोड़ स्टेक पे डालेगा? नेवर, नेवर। It is our understanding, it is our thought, it is being told to us in that way कि सर ये तो तुम्हारा तो करेक्ट है, बेटे इंश्योरेंस कंपनी का गलती है। I can prove in every case wherein वो क्लियर कट होएगा कि भाई it was the mistake of the applicant, it was the mistake of the financial advisor। या तो कोई क्लाइंट बोलता नहीं है कि मेरे को ये चीज है, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने उनको पूछा नहीं। एक हम लोग ने क्लासिक केस आया था, इट वाज आवर एक्सपीरियंस। एक हमारा क्लाइंट का पोर्टिंग का केस था, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। पोर्टिंग का केस था, हम लोग ने उनका केस पोर्ट किया था। स्टार का पॉलिसी था, स्टार में से वी हैड टेकन इनटू व्हाट वी से लाइक रेलीगेट। अभी
महीने के बाद उनको आया कि सर मेरे को वेरिको वेन्स है, आई एम हैविंग अ वेरिको वेन्स। अभी इन दैट आई टोल्ड कि भाई सर वेरिको वेन्स है तो इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग, आपने बताया नहीं। नहीं मेरे को पेन थोड़ी था, ये मेरे साथ का केस है, मेरे को पेन थोड़ा ही था, जबकि आई हैव टेकन, हम लोग का तो हम लोग का एक वे ऑफ वर्किंग है, वी टेक द अंडर राइटिंग फॉर्म। हम लोग ने अंडर राइटिंग फॉर्म पे साइन किया जिसमें उसने क्लियरली बोला था कि आई एम नॉट हैविंग एनी डिसीजेस। जब भी ये सिचुएशन हुआ वेरिको वेन से, मैंने बोला कि सर ये प्री एग्जिस्टिंग आपने बताया नहीं। सो एट दैट टाइम स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, अरे तुमने पूछा नहीं, तुमने बोला नहीं। अभी ये जो बॉडी है ना, इसमें 300 हड्डी है, तो कौन सा हड्डी में कब पेन होएगा, आई कांट अंडरस्टैंड। आपको पेन हुआ था, आपको याद रखना है, आपने कभी वो डॉक्टर के लिए गया था, आपको वो चीज डिस्क्लोज करना है। आप ये नहीं करोगे और यू ब्लेम के भाई हम लोग का गलती है। एंड एट लास्ट वी टोल्ड के भैया क्लेम नहीं मिलेगा। वी डिडंट आस्क आल्सो अवर इंश्योरेंस कंपनी, वी डिडंट आस्क आल्सो अवर इंश्योरेंस कंपनी के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज आई वाज श्योर कि नहीं मिलेगा। व्हाई आई वांट टू आस्क अननेसेसरी माय कंपनी, बिकॉज वेयरइन इट वाज द फॉल्ट ऑफ माय क्लाइंट। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल, लाइव केस था जिसके अंदर एक क्लाइंट का कुछ एक क्लेम आया था, जिसमें क्लेम के अंदर 1,90,000 का क्लेम था, 1,60,000 दिया, 30,000 डिडक्शन कर दिया। ये भी एक लाइव एग्जांपल था, 30,000 डिडक्शन किया। वी हैड फाइट विद कंपनी, क्लाइंट मेरे पे चढ़ गया, क्लाइंट बोलता है बॉस मेरे को तो पैसा चाहिए। आई टोल्ड कि बी पेशेंट, आपको 160 मिल गया है ना, बी पेशेंट, लेट मी हैव अ कम्युनिकेशन विद द कंपनी। उसके बाद दे टोल्ड कि भाई सर इसमें वो लोगों ने जो नॉर्मल बिल होता है उससे ज्यादा लगाया। तो ट्रस्ट मी, हम लोग ने वो केस को सीनियर अथॉरिटी तक लेके गया, सीइंग के सर आप जो बोल रहे हो कि आपका नेटवर्क में उसका बिल का कॉस्ट इतना है और ये आदमी ने जो हॉस्पिटल में करा है वो उसका कॉस्ट इतना है, एक्सेप्टेड 100%। कल उठ के आपके हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और दूसरा हॉस्पिटल उसका चार्ज लेगा, तो क्या आप क्लेम सेटल नहीं करोगे? नहीं करोगे। एंड देयर वाज जस्ट अ क्वेश्चन मार्क, नो आंसर फ्रॉम देयर। 40 डेज फाइट चला एंड 40 डेज में उनको पैसा अभी मिला, उनको पूरा पैसा मिला, 30,000 जो डिडक्शन था पूरा। आई हैड फाइट टिल सीनियर और हम लोगों ने उनको पैसा दिलाया। सो दिस इज द थिंग, वेयर क्लाइंट इज रॉन्ग आई विल नेवर फाइट, but where my client is not at a mistake I will never leave also and I will fight for him also so that he gets the advantage. So coming to the thing now, benefits तो ये है पॉलिसी, यस जैसा मैंने बताया कि सम इंश्योर्ड एक ही एज में 1 करोड़ स्ट्रेट अवे, नो डिफरेंट सम इंश्योर्ड की है इसमें। डे इन पेशेंट, डे इन यानी जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है तो उसका अप टू सम इंश्योर्ड, रूम रेंट नो सब लिमिट, आईसीयू चार्जेस नो सब लिमिट, प्री एंड पोस्ट यानी समझो आज आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट डिजीजेस और समथिंग, देन इन दैट केस जो भी आपका डिजीज है उसका 30 डेज पहले जो भी आपका कॉस्ट रहेगा वो, और 60 डेज आफ्टर योर डिस्चार्ज होने के बाद 60 डेज तक का जो भी कॉस्ट रहेगा, तो यस दैट आफ्टर 60 डेज कॉस्ट आल्सो विल बी कवर्ड। ऑटोमेटिक रिचार्ज, सुपर डुपर फंक्शनैलिटी, सुपर डुपर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या है आगे आएंगे उसमें समझेंगे। एम्बुलेंस चार्जेस, एम्बुलेंस इज द रोड एम्बुलेंस चार्जेस एंड दैट इज अप टू सम इंश्योर्ड। सब जगह पे कोई भी कंपनी में आप जाओ सब जगह पे कैपिंग है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में नो कैपिंग। ऑर्गन डोनर चार्जेस सब जगह पे सब कंपनी में कैपिंग है, इसमें नो कैपिंग। ऑर्गन डोनर यानी समझो कि कोई आपको डोनेट कर रहा है, आपको कुछ चीज की ऐसी जरूरत आ गई एंड उसमें कोई आपको डोनेट कर रहा है, तो इन दैट केस सामने वाले का भी जो भी कॉस्ट होता है, बट प्री और पोस्ट नहीं होएगा, ट्रीटमेंट का कॉस्ट एट दैट टाइम प्री और पोस्ट नहीं होएगा, बट ट्रीटमेंट का कॉस्ट यहां से उनको मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस में भी सुपर डुपर नो क्लेम बोनस है। गोइंग अहेड मैं उसमें बताऊंगा आपको व्हाट इट इज ऑल अबाउट और क्या है उसका नो क्लेम बोनस। ऑप्शनल बेनिफिट में नो क्लेम बोनस एनसीबी सुपर, वो भी क्या चीज है, एज वी गो अहेड वी कैन आई विल एक्सप्लेन यू। स्मार्ट सिलेक्ट, स्मार्ट सिलेक्ट के अंदर ऑलरेडी इसका जो प्रीमियम है दैट इज अफोर्डेबल प्रीमियम। आई रिपीट, ऑलरेडी इसका जो प्रीमियम है वो बहुत अफोर्डेबल है। इसमें भी ये लोग ने एक और ऑप्शन लाया है कि वेरिन इफ यू आर एडमिटेड इन देयर
हॉस्पिटल्स है उसके अंदर आप एडमिट होते हो तो उसमें भी आपको जो प्रीमियम है उसमें 20% का 15% का डिस्काउंट है। आई रिपीट, जिसमें भी स्मार्ट सिलेक्ट में आप कोई भी उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और नेटवर्क हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेते हो तो 15% का डिडक्शन है इन द प्रीमियम। बट आप नेटवर्क को छोड़ के दूसरे कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो उसमें 20% का को पेमेंट है। बट ये आई फील ये जो ऑलरेडी इन लोग का प्रीमियम इज मच मच चीपर, तो ये लेना आई डोंट फील, मैं किसको सजेस्ट नहीं करता हूँ ये लेना चाहिए। रूम रेंट मॉडिफिकेशन भी सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी, यानी इसके ये जो पॉलिसी है इसमें कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। आपकी जो भी पॉलिसी रहेगी, जो भी पॉलिसी, पीएसयू की पॉलिसी के अंदर तो कैपिंग है 100%। नॉन पीएसयू यानी प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी है उसमें भी आपको सिंगल प्राइवेट रूम ही है। ये जो प्रोडक्ट है केयर एडवांटेज, केयर में भी बाकी प्रोडक्ट है जिसमें है कैपिंग, रेलीगेयर के दूसरे प्रोडक्ट है जहां पे कैपिंग है, बट ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कैपिंग नहीं है। रूम रेंट मॉडिफिकेशन यानी आप जो सिंगल प्राइवेट रूम, आप बोलोगे कि भाई मैं तो सिंगल प्राइवेट रूम में ही लूंगा, तो अगेन इसमें भी कुछ तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस। हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, 24 घंटा आप हॉस्पिटल में रहे, इन पेशेंट का मतलब 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। डे केयर ट्रीटमेंट में वो सब ट्रीटमेंट आती है जिसके अंदर 24 आवर्स हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो हिसाब से इंप्रूव हो रहे, डे ऑन डे, डे इन डे आउट जो हिसाब से मेडिकल साइंस इंप्रूव हो रहे, सो 541 बीमारी ऐसी है कि जो आपको हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे 2-4 घंटा 6 घंटे में वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसका भी 541 आर कवर्ड डे केयर में, कि भाई जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन द सेंस के भाई तुम्हारा जो भी हाई फंडू बीमारी के अंदर जितना भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज होता है, जितना भी तुम्हारा सीजरिंग होता है, जितना लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितने भी हाई फंडू ट्रीटमेंट है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं, तो वो सब भी इसमें कवर्ड है। ऑल एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट रहती है, बट कॉस्मेटिक किधर भी कवर नहीं होता है, डेंटल किधर भी नहीं होता है। दैट इज द स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन एवरीवेयर। डेंटल बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हुआ तो कवर्ड है, इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट तो वो किधर भी कवर्ड नहीं है। सो दैट इज द थिंग। रूम रेंट में आते हैं तो यस, रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। किसी को जाके सूट में रहना है तो सूट में रहेगा, डिलक्स में रहना है डिलक्स में रहेगा, सुपर डिलक्स में रहना है सुपर डिलक्स में रहेगा, सी व्यू लेना है बीच व्यू लेना है, ऐसे भी हॉस्पिटल्स है जिसमें सी व्यू का अलग बीच व्यू का अलग। मुंबई में तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स है वेरिंग दे गिव अकॉर्डिंग टू दैट के सिंगल प्राइवेट रूम का ये चार्जेस है, ये पूरा ब्रोशर ही अलग है, डिलक्स का ब्रोशर अलग है, सुपर डिलक्स का ब्रोशर अलग है। यस, इन दैट केस आल्सो वी हैव दैट ऑल कि इसमें रूम रेंट लिमिट कोई नहीं है, कोई जात का वो नहीं है। एम्बुलेंस कवर तो रोड एम्बुलेंस 100% अप टू द सम इंश्योर्ड आपका कवर्ड है। ऑर्गन डोनर तो यस, ऑर्गन डोनर में भी मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्गन डोनर का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, जो वो डोनेट कर रहे तो तभी हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड रहेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, वो ऑर्गन डोनर करने के पहले उनके काफी टेस्ट होते हैं, तो वो जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो आपको नहीं मिलेगा, और ऑर्गन डोनर होने के बाद का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वो नहीं मिलेगा। वो केस में आपको वो ऑर्गन डोनर जो कर रहे हैं उनको उनके मेडिक्लेम से वो लेना है, उनको अपने मेडिक्लेम में उनको प्री और पोस्ट कवर करके मिलेगा। दैट इज नॉट द डील एट ऑल। नो क्लेम बोनस तो यस, नो क्लेम बोनस क्या रहता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होता है जो मेडिक्लेम का देते हैं, मेडिक्लेम के अंदर व्हीकल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में दो अंतर होता है। इट वर्स इंटर यानी रिवर्स चलता है, वो दोनों है ना रिवर्स चलता है। व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी आपका इंश्योरेंस है एवरी ईयर WDV निकलता है, रिटर्न डाउन वैल्यू निकलता है, और वो WDV क्योंकि घटते जाता है इसके लिए आपका प्रीमियम भी कम होता है व्हीकल इंश्योरेंस में। बट ह्यूमन लाइफ में वो चीज उल्टा है। आई रिपीट, ह्यूमन लाइफ में वो चीज उल्टा है। ह्यूमन लाइफ में आपका ह्यूमन वैल्यू बढ़ते जाता है, और क्योंकि आपका ह्यूमन वैल्यू बढ़ते जाता है इसके लिए आपको इधर आपका सम इंश्योर्ड बढ़ते जाता है। तो नाउ व्हाट इट इज, यानी 1 करोड़ की आपकी जो पॉलिसी है
आप इसमें सिर्फ नो क्लेम बोनस लिया एनसीबी, इसमें दो टाइप का बोनस आते हैं, एक एनसीबी है, ये नॉर्मल बोनस है, और एनसीबी सुपर। एनसीबी सुपर इज द डिफरेंट बोनस विच एड्स एट अ डिफरेंट लेवल, तो वो भी मैं बताता हूँ। एनसीबी है यानी सिर्फ तो 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30, 40, 50, 150 तक आपका जाएगा, बट 10% विल बी एडेड ओनली ऑन एवरी क्लेम फ्री ईयर। जिस साल में क्लेम नहीं है वो साल में ऐड होएगा, जिस साल में क्लेम है वो साल में ऐड नहीं होएगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नो क्लेम बोनस इज द थिंग कि जिस साल में क्लेम नहीं है वो साल में ऐड होएगा, जिस साल में क्लेम है वो साल में क्लेम ऐड नहीं होएगा। Going with the automatic recharge, super duper functionality, super duper option which is available, wherein 1 करोड़ की पॉलिसी है सुपर। ये जो ऑटोमेटिक रिचार्ज है ना, इसको इसके इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इजी फॉर यू टू व्हाट वी से लाइक, ये एक सिनेरियो समझो कि वेरी सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 1 के अंदर आपका पॉलिसी है 1 करोड़ का। अभी 1 करोड़ का आपका पॉलिसी है एंड अज्यूम दैट 1 करोड़ का क्लेम आ गया, अज्यूमिंग दैट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, 1 करोड़ के पॉलिसी के अंदर 1 करोड़ का ही क्लेम आ गया। जब 1 करोड़ का क्लेम आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड आपका बैलेंस सम इंश्योर्ड इधर जीरो हो जाएगा, आपका बैलेंस सम इंश्योर्ड जीरो हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड, सभी कंपनी में उस तरह से। बट इसके अंदर आपके पास एड ऑन रिचार्ज है। ये जो रिचार्ज फंक्शनैलिटी है, ये रिचार्ज फंक्शनैलिटी में आपको 1 करोड़ पूरा का पूरा रिफिल हो गया एक बार पॉलिसी टेन्योर में, एक बार यानी पॉलिसी पीरियड यानी 1 साल का जो पॉलिसी पीरियड रहता है, वो पॉलिसी पीरियड में एक बार फिर से आपका 1 करोड़ ऐड हो जाएगा, यानी आपका 1 करोड़ का क्लेम आया, पूरा क्लेम एब्जॉर्ब होने के बाद भी 1 करोड़ ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 1 करोड़ का भी क्लेम आएगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट क्लेम। आई रिपीट, फिर से भी क्लेम आएगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट क्लेम। दिस इज द सुपर बेनिफिट। इसके अंदर एक और एडिशनल है, सेम पर्सन सेम बीमारी को भी मिलता है। आइडियली सब जगह पे किस तरह से कि सेम पर्सन सेम बीमारी नहीं देते, सेम पर्सन सेम बीमारी नहीं देते, बट इन दिस सेम पर्सन सेम बीमारी देते। ओनली कंडीशन है कि 45 डेज के बाद, आफ्टर 45 डेज सेम पर्सन सेम बीमारी आया तो उनको भी वो कवर देंगे। सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे, 1 करोड़ का ही जो जैसा है सिनेरियो 2, एग्जांपल 2 समझेंगे। 1 करोड़ की पॉलिसी है, 1 करोड़ 9 लाख का क्लेम आया तो यू आर एलिजिबल फॉर 1 करोड़, तो आपको 1 करोड़ का मिल जाएगा। ये 9 लाख रुपया है वो आपको आपके जेब से देना पड़ेगा, और रिचार्ज मिलेगा विच इज योर 1 करोड़, 1 करोड़ का एडिशनल रिचार्ज मिल जाएगा आपको, जो पॉलिसी टेन्योर में है कि पॉलिसी पीरियड में एक बार ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा फॉर फुल अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 1 करोड़ एट अ टाइम, 1 करोड़ के ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा वही आपको क्लेम में करना है। अज्यूमिंग कि सेकेंड बार क्लेम आया 80,000 का, 80 लाख का, तो 20 लाख इज येट बैलेंस। ये जो आप देखेंगे ये 20 लाख है, तो ये 20 लाख अभी भी बैलेंस है विच यू कैन टेक फॉर डिफरेंट क्लेम इन दैट सेम पीरियड। सो दिस इज द थिंग। सिनेरियो 3 की बात करेंगे, एग्जांपल 3 की बात करेंगे। 1 करोड़ का आपका व्हाट वी से लाइक सम इंश्योर्ड था, 1 करोड़ के अंदर 90 लाख का क्लेम आया, यानी 90 लाख का 90 लाख सेटल होएगा, दैट विल बी नॉट अ इश्यू। अभी इधर बचा 10 लाख, यानी ओरिजिनल सम इंश्योर्ड में 10 लाख बाकी है, और जैसा मैंने बताया कि आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज मिलने वाला है, तो ये ऑटोमेटिक रिचार्ज 1 करोड़ का मिल जाएगा। सो योर नाउ टोटल एलिजिबिलिटी कितना है, तो 1 करोड़ 10 लाख आपका टोटल एलिजिबिलिटी है, 1 करोड़ 10 लाख। 50 लाख का क्लेम आया, 60 लाख इज योर बैलेंस के आप इतना और भी यूज कर सकते हो। So this is the super duper benefit given by this company in regards for this के ऑटोमेटिक रिचार्ज फुल सम इंश्योर्ड तक। दूसरा, सेम आदमी सेम बीमारी, ये जो है ये सेम बीमारी सेम आदमी को नहीं मिलता है, सेम सम इंश्योर्ड रिचार्ज होता है, दैट इज द फंक्शनैलिटी व्हिच इज गिवन एवरीवेयर बट एक्सेप्ट पीएसयू, बट जो सेम पर्सन सेम बीमारी का जो मिलता है वो नहीं मिलता है। सो इसमें वो भी कवर्ड है आफ्टर 45 डेज। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। ऑप्शनल कवर्स पे आते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल कवर है। तो रूम रेंट एलिजिबिलिटी, जैसा रूम रेंट मॉडिफिकेशन, तो जैसा आप उसमें बोलो कि भाई एक काम करो, मेरे को आप रूम रेंट का कैपिंग कर दो कि मैं सिंगल प्राइवेट रूम में ही रहेगा,
तो इफ यू आर डूइंग दैट कैपिंग तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है पॉलिसी में, बट आई डोंट सजेस्ट कि ये लेना चाहिए अगेन, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एक्सेप्ट, बट जो ये करंट सिनेरियो है इसमें रूम ही अवेलेबल नहीं रहेगा एंड यू हैव टू फोर्सफुली गो इन सम स्टैंडर्ड डिलक्स और समथिंग लाइक दैट, देन इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन तो आपका प्रीमियम में कटौती आएगा, आई मीन आपका जो रीइंबर्समेंट है उसमें आपको भरना पड़ेगा। सो आई फील ये नहीं लेना चाहिए। स्मार्ट सिलेक्ट इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि आप उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। आई दिस आल्सो थिंग आई सजेस्ट कि ये नहीं लो। रीजनिंग बिहाइंड दैट यही है, अगेन सेम एग्जांपल, जो उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में जगह नहीं है व्हाट यू विल डू, और 20% का को पेमेंट है। समझो आप दूसरे कोई हॉस्पिटल में गए, लाख रुपए बिल आया, 80,000 दे विल सेटल, सो 20,000 आपके जेब से जाएगा। सो सेविंग प्रीमियम इज नॉट द गुड थिंग बिकॉज ऑलरेडी अफोर्डेबल है, ट्रस्ट मी ऑलरेडी अफोर्डेबल है, उसमें सेव करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। कमिंग टू दिस नो क्लेम बोनस सुपर, ये जो नो क्लेम बोनस सुपर है ना, दिस इज द अनदर व्हाट वी से लाइक जो नो क्लेम बोनस था 10-10-10 जो 50%, दैट इज द डिफॉल्ट, यानी वो तो आपको मिलना ही है। दिस इज द एड ऑन, दिस इज द एड ऑन, बोले ना सोने पे सुहागा, दिस इज एक्चुअली दैट सोने पे सुहागा। आई ऑलवेज रिकमेंड, आई ऑलवेज टेल के नो क्लेम बोनस सुपर लेना चाहिए। सिंपल एग्जांपल के तौर पे जो बात करेंगे, 1 करोड़ का पॉलिसी, 5 साल क्लेम फ्री रहा, 5 साल के बाद 2.5 करोड़ का सम इंश्योर्ड। एग्जांपल के साथ बात करेंगे, एग्जांपल के साथ समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये जो दिया है इन लोगों ने, इलस्ट्रेटर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर 1 करोड़ की पॉलिसी है, 1 करोड़ के अंदर आपको कोई बोनस नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद बोनस चालू होने वाला है। सो क्लेम स्टेटस, उसमें कोई क्लेम नहीं था, वो साल में कोई क्लेम नहीं था, तो 1 करोड़। नेक्स्ट ईयर जब भी आप आएंगे तो नेक्स्ट ईयर में आपका जो पॉलिसी रहेगा वो 1 करोड़, नो क्लेम बोनस 10 लाख जो 10% आने वाला था, नो क्लेम बोनस सुपर एनसीबी सुपर 50 लाख रुपया, यानी नेक्स्ट ईयर यू कैन क्लेम अप टू 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक का आप क्लेम कर सकते। और ये साल में भी कोई क्लेम नहीं है, नेक्स्ट ईयर पे आते हैं ओपनिंग 1 करोड़ 60 लाख, आपके पास 1 करोड़ 60 लाख है, इसमें 10 लाख नॉर्मल जो ऐड होने का था एनसीबी का, प्लस एनसीबी सुपर का आपने राइडर लिया है तो उसका, क्योंकि ये एनसीबी सुपर इज द राइडर और इसका कुछ प्रीमियम थोड़ा सा 2-3 हजार फर्क आता है, तो दैट यू हैव टेकन, तो 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख इज द सम इंश्योर्ड जो आपके पास है। एक बार आपने 1 करोड़ का फैमिली फ्लोटर ले लिया ना बॉस, उसके बाद आई रिकमेंड आपको ज्यादा टेंशन में जीने की जरूरत नहीं रहेगी फॉर एनीथिंग। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ना, ये आपको संभाल लेगा, क्योंकि आज के तारीख में करोड़ रुपए का भी बीमारी का इलाज है ना, इंडिया में ट्रीटमेंट करने का रहेगा, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी अज्यूमिंग कि इसमें कोई क्लेम नहीं है, सो दैट इज अगेन क्लेम फ्री। नेक्स्ट ईयर आया 2 करोड़ 30 लाख, इसमें 10 लाख रुपए आपको एनसीबी का मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको। ये जो एनसीबी सुपर है वो सिर्फ 2 साल में है, उसके बाद में ये 5 साल जो आपको मिलता है एनसीबी का वो है। अभी ये साल में बाद में अज्यूमिंग के क्लेम आया, क्लेम आ गया तो डिडक्ट क्या होएगा, बोनस डिडक्ट होएगा, जो बोनस आपको मिला वो बोनस डिडक्ट होएगा। समझो आपका क्लेम आया 2 लाख रुपए का, 2 लाख का भी क्लेम आएगा तो बोनस पूरा निकल जाएगा, 50 लाख का भी क्लेम आया तो भी पूरा बोनस निकल जाएगा, यानी 60 लाख का बोनस 2 लाख के क्लेम के लिए निकल जाएगा, यानी हर क्लेम फ्री ईयर में वो फिर से ऐड होएगा, और जो साल में क्लेम आया तो जो सबसे पहला बोनस था वो बोनस निकल जाएगा। तो जैसा अपन इधर देखते हैं, यहाँ पे आपका वो बोनस माइनस हो गया एनसीबी का, एनसीबी सुपर का भी माइनस हो गया, अगेन ही हैज केम टू 1 करोड़ 70 लाख। फिर से ये साल में क्लेम आया तो यहाँ पे जब क्लेम आएगा तो ये ओपनिंग के इतना था, फिर एक 10 लाख रुपए जो सेकेंड ईयर में मिला था वो माइनस होएगा, एनसीबी सुपर भी माइनस होएगा, 1 करोड़ 10 लाख। अगेन उसके बाद कोई क्लेम नहीं आया, जब भी क्लेम फ्री है तभी वो फिर से 50 लाख ऐड हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 50 लाख ऐड किया, यहाँ पे दे हैव डिडक्टेड, ये आप देखेंगे ये दोनों में यहाँ पे ये लोग डिडक्ट किया है, बट यहाँ पे दे हैव एडेड इट। एडेड क्यों? कि क्लेम फ्री ईयर था, एंड ऑफ द डे उनका टारगेट एक ही है कि 2 करोड़ 50 लाख का सम इंश्योर्ड, बट
इट विल गो इन दैट वे एंड इट विल रिड्यूस इन दैट वे. बोनस को ही इम्पैक्ट आएगा, आपका कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं आएगा. आई रिपीट, बोनस को ही इम्पैक्ट आएगा, आपके कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं आएगा. So this is the way, this is the situation wherein ये NCB super चलता है. I always recommend कोई यंग जनरेशन है तो इंडिविजुअली आप समझो, एक का फैमिली है, इंडिविजुअल आप फैमिली इन द फैमिली ऑफ 3 के भी आप वाइफ और एक बच्चा है. आई रिकमेंड कि भाई आप आपका इंडिविजुअल 1 करोड़ का लो, भाभी जी का और बच्चे का एक, दोनों का फ्लोटर एक इंडिविजुअल 1 करोड़ का लो. आपका और उनका 2 अलग रखने में बेनिफिट क्या, you can get your ATD, she can get her ATD. और आपका दोनों का कवरेज इतना बड़ा, इतना अच्छा है, so that आपको आगे जाके उसकी रिव्यू करने की जरूरत नहीं, so that उसके ऊपर आगे सोचने की जरूरत नहीं, so that उसके ऊपर आगे कि भाई अरे आगे क्या करें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सोचने की जरूरत नहीं है. उसके हिसाब से गो फॉर आपका इंडिविजुअल, भाभी जी का और एक बच्चे का. समझो 2 बच्चे लोगे तो आपका +1 बच्चा एंड भाभी जी एंड 1 बच्चा, गो इन दैट वे सो दैट आपका पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा, पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा. So this is all about this current today's session for Religare Care Advantage. Religare Care Advantage क्या है, किस तरह से है, क्या है उसका फीचर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट. कमिंग अप विद द नेक्स्ट थिंग, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर सुपर डुपर एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी फैमिली को आप कैसे दे सकते हो. What are the business opportunities post lockdown 2020 से लेके 2030, ये जो 10 साल का पीरियड है कमिंग फ्रॉम 2020 टू 2030, ये जो अगला 10 साल का पीरियड है, what that period is all about, what that period is all about. एक छोटा सा मैं आपको एक क्लिप प्ले करेंगे, आपको उसमें समझ में आएगा व्हाट इट इज ऑल अबाउट. स्क्रीन दिख रहा है, कैन यू पुट ऑन द चैट बॉक्स, स्क्रीन दिख रहा है सबको, इज द स्क्रीन विजिबल, इज द स्क्रीन विजिबल, यस, ओके. एक छोटा सा है, बहुत मस्त है, हैंड्स फ्री रहेगा तो वॉल्यूम बड़ा कर देना, बहुत मजा आएगा सुनने के लिए. शक्ति परिवार को गुरु कांति साई का नमस्कार. सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते. मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना. तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? या देखे एक और सपना, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी. सो कमिंग टू द सेशन, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी पोस्ट लॉकडाउन 2020 टू 2030. 20, ये जो 10 साल का टेन्योर है ना, आग लगा देना, आग. रात को सोना मत, रात को इतना काम करना, इतना काम करना, एक टारगेट बनाना कि अपने पास 2030 में 50 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए, 50 करोड़. और एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये जो 2020 टू 2030 का जो ये विजन है ना, इतना फैंटास्टिक बना देना, एक पेपर पे जॉट कर देना, ताकि यू कैन
such a way you will enjoy. आज जो सोचेगा नहीं ना कि भाई मैं 2030 में रिटायर हो जाएगा, तो आज लिख देना कि बॉस वी विल रिटायर इन 2030, 2030 में तो मैं रिटायर हो ही जाएगा, और उसके लिए जो करना है ना वो आज से करना। उसके ऊपर का एक सुपर डुपर सेशन है, उसकी प्रेजेंटेशंस भी बन रही है। 15 अगस्त आजादी के दिन गांधी जी के जो पद चिन्हों पे चलना है, गांधी जी जो बोलते थे कि गांधी जी सत्याग्रह करते थे, गांधी जी ने जो जो चीजें हमको सिखाई है वो सब चीजें को लेके हम ये चीज एक बनाएंगे जिसका काम चालू है। बट सुपर डुपर प्रेजेंटेशन है, इसमें जितना हो सके उतने आपके बिजनेस क्लाइंट्स को भी बुलाना। ट्रस्ट मी, ये जो सेशन है इसमें आप आपके जितने बिजनेस क्लाइंट है सबको इनवाइट करना, लेट देम आल्सो ज्वाइन। और ये जो अपॉर्चुनिटी है जो 2020 टू 2030 है, तो उसको है ना फिनेंशियल 2020-2030 बना देंगे, जहां पे एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड तोड़ अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज, लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन आ गया, मेरा धंधे का वाट लग गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई लॉकडाउन आ गया बट आपको किसी ने रोका नहीं है, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। बट पीपल आर येट थिंकिंग कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे से नहीं होता है। See, if you cry, then no one will do anything. भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, but if you do, तो भगवान ही आपको सब कुछ करेगा। So, ये जो एक सेशन है, सुपर डुपर सेशन है, प्लीज प्लीज 1-1.5-2 घंटे का टाइम निकाल के ज्वाइन करना। यू विल एंजॉय। और इतना है कि जागना सिखा देगा, सोना भूल जाओगे, इतना सुपर डुपर सेशन करने वाले। और इसके बाद का जो सेशन है दैट इज ऑन 16th अगस्त एज आवर संडे सेशन, मेडिक्लेम फॉर सीनियर सिटीजन्स। हमारे जो पेरेंट्स हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। ये जो इमेज में जिस तरह से आपको दिख रहा है, सभी के सभी सीनियर सिटीजन खुशहाल है, सभी के सभी सीनियर सिटीजन जो हमारे पेरेंट्स है वो कैसे खुश है। तो सेम वे हाउ वी कैन गिव देम व्हाट वी से लाइक हैप्पीनेस बाय हैविंग अ मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर देम, उसके ऊपर का एक सेशन है, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट, स्टे ट्यून्ड। इसके अंदर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वी आर ओपन फॉर द सेम। Is there any question you can put on the chat box? ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मैंने शेयर कर दिया है। सर आपको प्रीमियम चार्ट जो है वो मेरी टीम को मैं बोलूंगा, शी विल कांटेक्ट यू टुमारो एंड शी कैन हैव द वर्ड विथ यू। मैं मेरी टीम को बता दूंगा, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे दैट शी विल सॉल्व एंड शी विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑल द थिंग्स सॉल्व। ये जो सेशंस है सर, ये जिस तरह से हम लोग ये सेशंस करते हैं, दिस सेशंस वी आर डूइंग फॉर ऑल योर सोसाइटीज, फॉर ऑल योर क्लाइंटल्स। एक हम लोग ऐसे क्लाइंट मीट भी करते हैं, जैसे लास्ट वीक हम लोग का कोरोना के ऊपर था, ये वीक हम लोग का ये प्रोडक्ट के ऊपर है, नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग अप विद सीनियर सिटीजन, जैसा मैंने बताया आपको। उसके बीच में एक प्रीमियम लेक्चर है फॉर विजन 2020 टू 2030। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सेशंस एवरी वीकली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एवरी वीकली कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करते रहेंगे, एवरी वीकली वी विल बी लर्निंग समथिंग, और ये इस तरह से ये चलते रहेगा। मेरा सिर्फ इसमें एक ही रिक्वेस्ट है, यू कैन इनवाइट योर क्लाइंट्स आल्सो, इसमें कोई जात का कोई इशू नहीं है। यू कैन आस्क योर टीम आल्सो कि ज्वाइन, और वी कैन लर्न एंड वी कैन ग्रो टुगेदर। दिस इज ये जो बेसिक आइडिया, ये जो सेशंस करने का है, ये सेशंस के पीछे मैं एक दिन एक हफ्ता सिर्फ बोलता हूँ, पर उसके लिए पूरा वीक मेरा पूरा टीम मेहनत कर जाता है। मेरा जितना डीटीपी का बनाने वाला है, मेरा इंश्योरेंस टीम है तो इंश्योरेंस का है, मेरा बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, आपका वीक मेरा टीम पूरा लग जाता है कि सर नेक्स्ट वीक का जो 1 घंटे का सेशन है उसके अंदर अपने को क्या करना है, व्हाट क्रिएटिव, और सब आइडियाज। ट्रस्ट में ये जितना भी चीजें जो होती है ना, ये सब चीज की आइडिया मेरी टीम देती है। सी आई जस्ट टेल देम के वी आर प्लानिंग टू डू, और मेरी टीम पूरी लग जाती है उसके लिए।
होशो हवास से कि भाई सर ये टॉपिक के ऊपर करते, एंड आई accumulate all the data and I structure it in that way. सिर्फ मैं स्ट्रक्चर करके देता हूँ और मेरी टीम पूरा करती है. This all is the credit to my team or at all, कि जिसमें we are doing this all things in a very big way and we can grow on a very different way. So ये client meet sessions भी हम लोग करते हैं कि जहाँ पे हम आपके clients को भी invite कर सकते हैं and we all can grow together. Basically ये सब करने का reason ये है कि we can grow together because हम लोग सभी business में there is lot of different verticals wherein there are lot of revenue structures which are there. आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, they can help you in guiding that also. Idea behind that is कि we all want to grow together on a different vision. ये जो 2020 to 2030 है ना सर, ये आग लगा देंगे. ये जो 10 साल है ना, ये 10 साल में इतना दबा के बिजनेस कर सकते हैं, इतना तोड़ के बिजनेस कर सकते हैं कि you can't assume. जो आज के तारीख में ये सिनेरियो में जो आदमी सोच रहा है कि कैसे करेंगे, वो आदमी सिर्फ सोचते रहेगा, और जो आदमी ये सिनेरियो में कर रहा है एक्शन, वो आदमी कर लेगा. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन कमिंग अनदर 10 years. सो मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 15 अगस्त का जो सेशन है उसमें प्लीज 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 सभी को रिक्वेस्ट है ज्वाइन करना. यू विल एंजॉय द लॉट. आपके सभी क्लाइंट को भी आप इनवाइट कर सकते हैं एंड आपके कोई फ्रेंड सर्कल रिलेटिव उनको भी शेयर करना एंड लेट देम आल्सो एंजॉय. सो आई थिंक आई हैव डन विद द सेशन. बाकी प्रीमियम चार्ट आपको सर मेरा टीम आपको दे देगा एंड आई विल आस्क हर टू कांटेक्ट टू यू. सो वी विल एंड द सेशन. नमस्कार. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फैमिली एंड स्टे सेफ.